Good morning, students, and a very happy new year to all my dear students. I pray to God that this year may helps in the elimination of whole negativity that was in the atmosphere during last year. So I wish to all of you a very happy new year. So students, today in today's lecture I am going to start with the chapter number 11 of a history book, that is New Empires and Kingdoms. Yes students, in the earlier chapters you have read about the Mauryan Empire. It was a very large empire, but after the decline of Mauryan Empire, many large or small kingdoms came into existence. But in the middle of 4th century, we can say a new dynasty, a new kingdom was emerged in the North India, and it was Gupta dynasty. So students, in this chapter we will read about a new empire, that is Gupta dynasty, Harshvardhana dynasty, and so on. So let's start with the chapter. First one is Prashastis and what they tell us. So student, this is the first heading in your book. First of all, what is Prashasti? Prashastis means inscriptions of special kinds. It means in praise of, very important. Prashastis क्या होती हैं? These are just like inscriptions. Inscriptions means writings that were written on the stone slab or that were written on the pillar. But these are special because they are always written in the praise of someone else. Especially these were written in the praise of rulers, and these were written by the court poet of the rulers. Clear? Prashastis are written in the praise of ruler. So from these Prashastis we come to know about Gupta dynasty. Very important. After the decline of Mauryan Empire, there is Gupta dynasty. And who was a famous ruler of Gupta dynasty? Smudragupta. Very important students. Yes, we come to know about him from a very long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. So हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कहाँ से पता चलता है? फ्रॉम अ प्रशस्ति, एक प्रशस्ति से, यानी कि अशोका ने अपने टाइम पे इलाहाबाद में एक पिलर था उसके टाइम में, तो वहाँ पे इंस्क्राइब्ड किया हुआ है अबाउट समुद्रगुप्ता कि हु वाज ही, व्हाट वाज गुप्ता डायनेस्टी. सो फ्रॉम दैट इंस्क्रिप्शन वी कम टू नो अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, वी कम टू नो अबाउट समुद्रगुप्ता. Yes, it was composed as a kavya by Harisena. What is kavya? Kavya means like a poetry, and it was written by Harisena. किसने लिखी थी ये प्रशस्ति? हरिसेना ने. Who was he? He was the court and minister of Smudragupta. Yes, वो एक पोइट था and he was the minister in the court of Smudragupta. तो उसने अपने किंग की प्रेज में जो प्रशस्ति लिखी है, तो वहाँ से पता चलता है अबाउट गुप्ता डायनेस्टी. नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक इज समुद्रगुप्ता प्रशस्ति, यानी कि हरिसेना ने उस प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता को कैसे दिखाया. नंबर 1, ही डिस्क्राइब्ड हिम एज अ वॉरियर. वॉरियर मतलब बेस्ट जो योद्धा होता है. एज अ किंग, एक बहुत अच्छे किंग के रूप में. लर्नड, वेल एजुकेटेड दिखाया है. बेस्ट ऑफ पोइट, कि बहुत ही अच्छा वो पोइट था. इवन ही डिस्क्राइब्ड समुद्रगुप्ता एज इक्वल टू द गॉड. इवन कि जो हरिसेना ने समुद्रगुप्ता को किसका दर्जा दिया है? भगवान के रूप में. क्योंकि जो भी प्रशस्ति लिखी जाती थी वो हमेशा रूलर की प्रेज में लिखी जाती थी, उन्हें ग्लूमिंग टर्म्स में दिखाया जाता था, बिकॉज इसके बदले में उन्हें रिवार्ड्स दिए जाते थे, पैसा मिलता था, ज़मीनें मिलती थी. सो हमेशा जो पोइट्स लिखते थे वो प्रेज में लिखते थे. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक इज इन योर बुक इज एनालिसिस ऑफ द मैप. ये मैप स्टूडेंट्स आपको दिया गया पेज नंबर 113 में. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देती हूँ. हरिसेना डिस्क्राइब्ड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसीज टूवर्ड्स देम. तो यहाँ पे हरिसेना जो पोइट है उसने बताया कि 4 डिफरेंट रूलर्स थे उस टाइम में, ठीक है, गुप्ता के टाइम में, और समुद्रगुप्ता ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई उन रूलर्स के लिए. तो हम ये एक मैप में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पॉइंट्स. तो इस मैप में हमें जो ग्रीन कलर है, सी दिस मैप स्टूडेंट. तो इस मैप में हमें जो ये ग्रीन कलर है वो दिखाए हैं रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता. उसके बाद है स्टूडेंट्स, रेड कलर शोज रूलर ऑफ दक्षिण पत्था द पाथ लीड्स टू साउथ. उसके बाद पर्पल कलर शोज कर रहा है वो नेबरिंग स्टेट है हमारी, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एक्सेट्रा. ब्लू कलर शोज द आउटलाइंग एरिया, यानी कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं. ठीक है. सो सी दिस मैप एंड कम टू learn about this.
हाँ जी स्टूडेंट सी, जो ये ग्रीन पोर्शन है ये है रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता। तो इन्होंने क्या किया था, इन्हें अप्रूव कर दिया, उखाड़ दिया था समुद्रगुप्ता ने बैटल में, और इनकी किंगडम को अपनी एम्पायर का पार्ट बना लिया। क्लियर स्टूडेंट। देन सी दिस 9 रेड डॉट्स हैं, तो ये जो रेड डॉट्स हैं ये रूलर्स हैं दक्षिण पथा के, साउथ के रूलर्स हैं। तो इनके साथ भी जब समुद्रगुप्ता ने फाइट की तो इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्ता को, ठीक है। बट बाद में समुद्रगुप्ता ने इनको इनके किंगडम्स वापस कर दिए थे रूल करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद सी दिस पर्पल पोर्शन, ये जो पर्पल पोर्शन है तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है असम, बंगाल, नेपाल के यहाँ पे रूलर्स थे। तो ये डर के मारे, क्योंकि ये बहुत डरते थे समुद्रगुप्ता थे, तो डर के मारे वो समुद्रगुप्ता को क्या लेके आते थे, समुद्रगुप्ता से मिलने आते थे, ट्रिब्यूट्स गिफ्ट लेके आते थे, हमेशा उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, हमेशा उसकी कोर्ट में जाते थे। क्लियर। एंड सी दिस ब्लू पोर्शन, तो ये जो ब्लू एरिया है ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुशाना, शाकाज रहते थे। और जो ये श्रीलंका है तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो श्रीलंका के जो रूलर्स हैं उन्होंने भी डर के मारे समुद्रगुप्ता के साथ या उनके घराने में अपनी बेटियों की शादी कर दी, ताकि जो समुद्रगुप्ता से हम दुश्मनी ना मोल ले सकें। सो स्टूडेंट्स क्लियर, आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देन we will read about genealogies, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक genealogy, you can see in your book also genealogy। जिनोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होती है मेंशंस द एंसेस्टर्स ऑफ रूलर्स, कि जब हमें रूलर्स के फोर फादर्स के बारे में मेंशन किया जाता है कहीं पर, उसे कहते हैं जिनोलॉजी, ठीक है। इनके उनके ग्रेट ग्रैंडफादर देन सन, उसे कहते हैं जिनोलॉजी। सो व्हाट इज प्रयाग प्रशस्ति, इट मेंशंस समुद्रगुप्तास ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो इस प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में क्या बताया गया है, समुद्रगुप्ता के एंसेस्टर्स की हमें एक सीक्वेंस दी गई है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, फिर उसके बाद ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद फादर, देन उसकी मदर। हिज मदर कुमारा देवी तो बिलोंग टू लिच्चावी गना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यानी कि समुद्रगुप्ता की जो मदर थी वो थी कुमारा देवी, उसका जो गना था लिच्चावी गना को बिलोंग करती थी, जिसके कारण तो ये गुप्ता डायनेस्टी की प्रेस्टीज है, जो कह सकते हैं शान शौकत, इज़्ज़त और भी बढ़ गई थी, क्योंकि ये काफ़ी हाई ऊंचे घराने से थी। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और जो ये चंद्रगुप्ता है वो कौन थे, गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्ता कौन है, फादर ऑफ समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट इज समुद्रगुप्ता एंड हिज फादर अडॉप्टेड द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा। स्टूडेंट ये टर्म आपने पढ़नी है। तो समुद्रगुप्ता और उसके फादर, कौन थे फादर, चंद्रगुप्ता, तो उन्हें कौन सा टाइटल दिया गया उस टाइम के लोगों ने, महाराजा अधिराजा। इट मीन्स राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा को क्या कहते हैं, महाराजा अधिराजा। while his grandfather and great grandfather and grandfather are mentioned as महाराजा, जबकि उसके जो परदादा थे या उनके जो दादाजी थे उन्हें कौन सा टाइटल मिला, महाराजा। क्लियर हुआ। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताती है, प्रयाग प्रशस्ति, अबाउट द एंसेस्टर्स ऑफ समुद्रगुप्ता। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं गुप्ता जेनोलॉजी। तो यहाँ पे उनकी ये सीक्वेंस दिखाई गई है। चंद्रगुप्ता के कौन थे, चंद्रगुप्ता के आगे सन थे समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के आगे सन कौन थे, चंद्रगुप्ता 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 और यहाँ पे 2 इसलिए दिया गया क्योंकि नेम सेम होते थे। तो हिस्टोरियंस इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो अर्लियर होते हैं उनके आगे 1 लगा देते हैं, जो उसके बाद है वहाँ पे 2। अगर इसके बाद भी कोई और आए तो 3, यानी कि समुद्रगुप्ता के फादर चंद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता 2 जो है वो सन है समुद्रगुप्ता का। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बुक, हर्षवर्धना एंड हर्षा चरिता। सी इन योर बुक हर्षवर्धना एंड हर्षा चरिता। ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अ लार्ज नंबर ऑफ किंगडम्स अरोज इन नॉर्थ इंडिया। क्योंकि ये जो गुप्ता डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में थी, उनकी डिक्लाइन होने के बाद और भी कई डायनेस्टी आई। बट क्या हुआ, अराउंड 100 ईयर्स आफ्टर द गुप्ता डायनेस्टी, उनके चले जाने के 100 साल बाद अ किंग आया एंड हिज नेम वॉज हर्षवर्धना। तो उसने क्या किया, स्मॉल स्मॉल स्टेट्स को यूनाइट कर दिया एंड एक बहुत बड़ा एक किंगडम सेटअप कर लिया। ठीक है। सो हर्षवर्धना वॉज द रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। तो इनकी डायनेस्टी कौन सी थी, पुष्यभूति।
एंड दे रूल्ड अराउंड 1400 ईयर्स अगो, पहले इन्होंने रूल किया। क्लियर स्टूडेंट? यस। हर्षचरिता, हर्षचरिता क्या चीज़ है? इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना, यानी कि ये हर्षवर्धना की लाइफ के बारे में लिखी गई एक बुक है हर्षचरिता, और एग्जाम में भी जरूर क्वेश्चन आता है। रोट बाय हिज पोइट, तो ये लिखी किसने है? बाना भट्टा। बाना भट्टा कौन थे? कोर्ट पोइट थे, किसके? हर्षवर्धना के। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है हरिसेना समुद्रगुप्ता की कोर्ट का पोइट था, सेम बाना भट्टा इज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धना। गिव्स अस जेनोलॉजी ऑफ हर्षा, तो इसमें हमें उन्होंने क्या बताया है कि जो हर्षवर्धना की जेनोलॉजी के बारे में, उनके फोर फादर्स, ग्रैंड फादर्स के बारे में बताया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? हर्षवर्धना बिलोंग्स टू पुष्यभूति डायनेस्टी एंड हर्षचरिता इज द बायोग्राफी दैट इज रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट बाना भट्टा। नेक्स्ट है हर्षा बिकेम द किंग ऑफ थानेसर। सो चाहे वो हर्षा अपने मीन्स की एल्डेस्ट सन नहीं था अपने फादर का, बट उसके फादर और उसके एल्डर ब्रदर की डेथ होने के बाद उसे थानेसर का क्या बना दिया जाता है? किंग बना दिया जाता है। तो काफ़ी यहाँ पे ना हिस्ट्री है जो हमारी बुक में मेंशन नहीं की हुई, सो यू हैव टू जस्ट रीड दिस लाइन्स। ही ऑल्सो टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, तो थानेसर पे तो वो रूल कर ही रहा था, साथ में उसने किस पे रूल किया? कन्नौज पे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, क्योंकि उसकी जो सिस्टर के हस्बैंड थे वो कन्नौज के रूलर थे, बट उन्हें मार दिया जाता है लड़ाई में, बंगाल के जो रूलर है उन्हें मार देते हैं। सो उसके बाद उस किंगडम पे कौन कंट्रोल करता है? हर्षा कंट्रोल करता है। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर। हाँ जी, इसमें हमने पढ़ा है अबाउट समुद्रगुप्ता, कौन थे वो? ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। उसके बाद हर्षवर्धना थे, वो पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे। देन गुप्ता प्रशस्ति क्या होती हैं? दीज आर इंस्क्रिप्शंस दैट आर रिटन इन द प्रेज ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर इन योर बुक ऑल्सो। थैंक यू सो मच।